हमारा आज का फोकस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर हाल में याद कर लेनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड इज द एग्जैक्ट orientation of the particle is not important. I mean, if I remove this particle from here, if I just remove the particle from here and put it on other side of the axis at the same distance r1, the moment of inertia has not changed. This is a ring of mass m and radius r, and the axis that we are talking about is an axis passing through the center of the ring perpendicular to the plane of the ring, going like this. This pen is the axis, it's like this. This is the sum that we are going to get. So if you take r square common, m1 plus m2 plus m3 plus m4, that is total mass of the ring. So moment of inertia of this ring about this axis will be mr square. इस सिलेंडर को गाजर का जैसा सलाद बनाते हो वैसा काट दो। ये पीले रंग की एक डिस्क काटी, उसी के नीचे तुम नीले रंग की एक डिस्क काटो, ऐसे गाजर की सलाद जैसे बनाते हैं, इमेजिन करो। स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? ma²/6। अब बच्चों एक आखिरी सवाल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मज़े में हैं और खूब पढ़ाई कर रहे हैं। आज नीट टू 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरियस ज्योमेट्रीज के लिए एक तो याद करा देता हूँ, प्लस पैरेलल एक्सेस और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का यूज सही ढंग से कैसे करते हैं ये भी सिखा देता हूँ। तो हमारा आज का फोकस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर हाल में याद कर लेनी चाहिए, ठीक है? लेकिन वो जहाँ जहाँ संभव होगा मैं आपको उस याद करने के लिए भी टिप्स और ट्रिक्स देता चलता हूँ। सबसे पहले जल्दी से देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक लाइन के रेस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। वी ऑलवेज डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू सम फिक्स लाइन. That line is often known as axis, right? If this is the fixed line and these are mass particles, suppose there is a system in which we have only these three masses. The perpendicular distance of these three masses from this given axis are r1, r2 and r3. This is always the perpendicular distance. Then we say that moment of inertia of this mass distribution about the axis is given by this expression. Okay, if there are many more masses, you can just go on adding them. In short, we write it as like this. You can put a subscript I, that particle number I has mass mi and its perpendicular distance from the axis is ri. So it is summation of mr square basically for all the particles, right? This is the moment of inertia, and here the most important thing to be understood is the exact orientation of the particle is not important. I mean, if I remove this particle from here, if I just remove the particle from here and put it on other side of the axis at the same distance r1, the moment of inertia has not changed. The moment of inertia just depends on mass and distance of the mass from the axis. If I move this particle from this side onto this side, the moment of inertia will not change provided the distance has not changed. For that matter, if I bring this particle somewhere here at the same distance r2 from the axis, then also moment of inertia has not changed. In case of continuous rigid bodies, we cannot count the number of particles. Therefore, we often do integration. We take small element, we think of those elements as point masses, and for every element we write the moment of inertia and add them. The process of addition is done via integration. That is how we obtain the moment of inertia. But okay, we are not going to do any integration here, so don't be afraid of that. Now the first geometry that comes to my mind is ring. Think of a simple ring having mass m, radius r. This is a ring of mass m and radius r.
and the axis that we are talking about is an axis passing through the center of the ring perpendicular to the plane of the ring going like this. This pen is the axis, it's like this. The same thing can be shown here like this also, right? So this is the axis, this is the radius of the ring, and ring has mass m. Okay, so this is the axis about which we wish to write the moment of inertia of this ring. Now the situation is very straightforward, because if I consider a particle of mass m1 on this ring, this mass is at a distance r from this axis. What is distance of this particle from the axis? Axis means this pen. What is distance of this particle from this pen? It is r. So moment of inertia of this particle will be m1 r square, radius capital R. Now consider another particle 2, m2. What is distance of this particle from the axis? Capital R. So moment of inertia में contribution कितना होगा? m2 r square. Similarly third particle m3. What is distance from this axis? R. So m3 r square. You have to go on adding so as to include each and every particle on the ring, because every particle on the ring is at distance r from the axis. Therefore this is the sum that we are going to get. So if you take r square common, m1 plus m2 plus m3 plus m4, that is total mass of the ring. So moment of inertia of this ring about this axis will be mr square. Students, those of you who are careful must have understood that if it is a half ring having mass m and radius r, if it is a half ring having mass m and radius r, and I ask you to find moment of inertia about this axis, axis is passing through the center of curvature. This is the axis, pen is the axis. And what is the moment of inertia of this half ring about that axis? Those of you who are watching carefully, you have understood that this is the answer. The moment of inertia will be mr square. Reason being, if this pen is the axis, then each and every particle is at distance r from the axis. For this particle I will write m1 r square. For this particle I will write m2 r square. For this particle I will write m3 r square. For this one I will write m4 r square. So if I add all those things, r square gets common, m1 plus m2 plus m3 plus m4, that is total mass of this given half ring, whatever it is. So for half ring also, if its mass is m and radius is r, the moment of inertia will remain same. For that matter, if it is any circular arc, let us say it is a circular arc which subtends an angle of 120 degree at the center. If it is a circular arc and it subtends an angle of 120 degree at the center, or any angle theta, mass of this circular arc is m and radius is r, and we are asking you to find moment of inertia about this axis. This pen is the axis passing through the center of curvature. What will be your answer? It will be mr square, because each and every particle is at same distance r from the axis, given axis. So the moment of inertia will be mr square in all these cases. Okay, now let us move on to disk. I will not do the integration, don't be afraid. But disk can be thought to be, if this is the disk and this is the axis about which we wish to write the moment of inertia. When I draw an axis like this, it simply means the axis is this pen. Axis is a line perpendicular to the plane of the diagram passing through the center. Now for obtaining moment of inertia of such a disk, what is actually done is, we assume that this disk is made up of many such rings. This is one such ring, this is another such ring. If I go on placing ring over ring, just go on assuming ring over ring. So starting from here to here, there are many such rings. All those rings combine to make a disk. So by adding the moment of inertia of all those rings, we can get the moment of inertia of the disk. So I am not doing that mathematics, but the answer is, if it is a disk of mass m and radius r, then moment of inertia about this central axis, this axis, pen is the axis, is half mr square. The students, please do remember this, half mr square. Right, now look at this. If I say that this is a cylinder, solid cylinder, right? This is a solid cylinder of radius r and mass m. Think of it. This is a solid cylinder of radius r and mass m,
and this is the axis I am talking about. What is the moment of inertia of this cylinder about this axis? Now, if you know this result, this is very straightforward, very straightforward. I can divide this cylinder into n number of such discs. इस सिलेंडर को गाजर का जैसा सलाद बनाते हो वैसा काट दो. ये पीले रंग की एक डिस्क काटी, उसी के नीचे तुम नीले रंग की एक डिस्क काटो, ऐसे गाजर की सलाद जैसे बनाते हैं इमेजिन करो. उसी के नीचे वाइट कलर की एक और डिस्क ऐसे काटो. ये सब डिस्क मिलेगी ना ऐसे. ये अलग अलग कलर के जो डिस्क मिल रहे हैं, इन डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हम जानते हैं. इनमें से हर एक डिस्क, जैसे पीला वाला जो डिस्क है वो एक्चुअली में ऐसा है, ये डिस्क है, और ये सेंट्रल एक्सिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है? आंसर है हाफ mr², जैसा कि फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है. तो अगर इस पीले वाले डिस्क का मास m1 है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m1r². नीले वाले डिस्क का मास m2 है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m2r². व्हाइट वाले की मास m3 है, हाफ m3r². ऐसे सभी डिस्क, ये सभी स्लाइसेस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरे सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी. तो देखिए हाफ r² तो कॉमन आ गया, हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 ये सब ब्रैकेट के अंदर बच गया. तो ये दिस इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ दिस सिलेंडर. तो एक सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगी जो इस डिस्क की होगी. यहाँ से बहुत सारे बच्चे ये भी समझ गए होंगे कि अगर मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर एक मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड नहीं है, हॉलो है. इस हॉलो सिलेंडर की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें लिखनी है तो आप में से बहुत सारे समझदार बच्चे समझ गए कि आंसर mr² होगा, क्योंकि इस सिलेंडर को भी अगर मैं ऐसे बहुत सारे रिंग्स में काट दूँ, ये ऐसा कट करूँगा तो क्या मिलेगा? एक रिंग मिलेगा. उसके नीचे एक और कट लगाया तो क्या मिलेगा? एक और रिंग मिलेगा. उसके नीचे एक और कट लगाया तो क्या मिलेगा? एक और रिंग मिलेगा. और हर ऐसे रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हम जानते हैं. पहले वाले रिंग का मास अगर m1 है, दूसरे का मास अगर m2 है, तीसरे का मास अगर m3 है, तो इस तरह से सभी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दीजिए, ये आपको मिल गया टोटल मास इनटू r². तो एक रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम हो गया, एक डिस्क और एक सॉलिड सिलेंडर का सेम हो गया. यहाँ तक आई होप बच्चों आपको बातें याद हो गई. अब एक और चीज़ जो आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने शायद नंबर भी दिया था दूसरा डिस्क, तो इनको नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ऐसे ही याद हो गए, है ना. तीसरा आपको याद करना चाहिए एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड. यहाँ सभी ज्योमेट्री जो है वो आप यूनिफॉर्म मान के चलिए. यूनिफॉर्म रॉड, अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसा एक रॉड है, तो एक थिन लाइन के ऊपर मास रखा हुआ है, ऐसा समझिए, थिन रॉड है. हाँ, इस रॉड की मास m और लेंथ l है. इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्टली दो फॉर्मूला याद कर लो, हालांकि एक याद करके दूसरा बाद में निकल आता है, लेकिन दोनों याद कर लो तुम अभी के अभी. ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड के, ये रॉड है, इसके एक एंड से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये वाली, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 1/3 ml². और रॉड के सेंटर से पास होने वाली, रॉड के परपेंडिकुलर ऐसी एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसको मैं ICM लिख दे रहा हूँ. ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसको ICM लिख दे रहा हूँ. ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होगी. तो ये रॉड के लिए बच्चों याद कर लो, ये भी इंटीग्रेशन करके आता है. ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन तुरंत के तुरंत याद कर लो. अब चलो देखो, रॉड का याद किया तो इससे कोई फायदा हो सकता है क्या? हाँ जी, देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट को देखिए, एक रेक्टेंगुलर प्लेट को इमेजिन कीजिए आप, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लेट इमेजिन कीजिए. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, लेट अस से सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भी हमें अलग से याद करना पड़ेगा.
नहीं नहीं, अब आपको ये अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, मैं यही सिखा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला याद है तो कौन सा हम तुरंत ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर रिंग का याद है तो हॉलो सिलेंडर पता है, अगर डिस्क पता है तो सॉलिड सिलेंडर पता है, लाइक दैट। रॉड पता है तो रेक्टेंगुलर प्लेट पता है। विश्वास नहीं होता, देखो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसको तुम ऐसे थिन रॉड्स में काट दो, ये पहला रॉड है, उसके नीचे ये दूसरा रॉड है, समझ गए मेरी बात को, उसके नीचे ये तीसरा रॉड है, उसके नीचे ये चौथा रॉड है, ऐसे यहां से यहां तक हजारों रॉड है पतले पतले। हर रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाइट लाइन के अबाउट लिख के जोड़ दो। ये जो पहला रॉड है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी पढ़ी हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस इज 1/12 ml²। तो यहाँ जो हो गया ये हो गया 1/12 m1a², इसकी लेंथ a है, और वो पीले वाले रॉड का मास m1 है। अगर इस नीले वाले रॉड का मास m2 है तो बेटा ये लिखो, अगर ये लाल वाले का मास m3 है तो बेटा ये लिखो। ऐसे करके नीले लाल हरे पीले जितने हैं सबको जोड़ दो, तो ये 1/12a² तो कॉमन आ गया, और m1 प्लस m2 प्लस m3 ये सब जो जोड़ोगे टोटल मास हो गया, तो 1/12 ma²/12। ध्यान दो, इस रॉड का भी होता है इस एक्सिस के अबाउट ma²/12, और हमारे इस रेक्टेंगुलर प्लेट का भी होता है ma²/12। तो अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप सिमेट्री से समझ जाओगे, कॉमन सेंस से समझ जाओगे कि इस एक्सिस के अबाउट ma²/12 है, तो इस वाली सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट mb²/12 होगा। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ma²/12 एक कॉमन आंसर है। चलिए, इसके अलावा आपको बेसिकली जो याद करना है वो ये दो चीजें और याद करनी है, एक हॉलो स्फीयर, एक यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है। एक फुटबॉल इमेजिन करो, किसी भी डायमीटर के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होती है, और अगर यही चीज सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर यही चीज एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होती है। बस जहां तक रटने का सवाल है आपको इतना ही याद होना चाहिए। इसके बाद बाकी जितने भी रिजल्ट्स या फॉर्मूले आपको पता लगाने हैं वो सब के सब आप दो थ्योरम से पता लगा सकते हो, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आओ जल्दी से समझ लेते हैं ये दोनों थ्योरम होते क्या हैं। सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अक्सर आप मिस कर जाते हो। एक बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली कोई भी एक एक्सिस इमेजिन करो, मान लो तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अब इसके पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। इसके पैरेलल दूसरी एक्सिस बॉडी के बाहर भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है, इसका कोई रूल नहीं है, अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। ये दूसरी एक्सिस है, मान लो ये दूसरी एक्सिस पहले के पैरेलल होनी चाहिए, और पहली एक्सिस कहाँ होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए। ये बात अगर भूल गए तो गलतियां करोगे। ये दोनों एक्सिस के बीच की दूरी d है, तो ये जो नई वाली एक्सिस तुमने बनाई है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ICM प्लस md²। बेटा ICM पहली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, d दोनों एक्सिस के बीच की दूरी, और m बॉडी का मास है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी जल्दी फटाफट दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, अभी जैसे हमने पढ़ा एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस हम बोल सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी होती है, ऐसा आपने पढ़ा। अब किसी ने कहा कि किसी टेंजेंट के अबाउट निकालो, इस सॉलिड स्फीयर पे एक टेंजेंट इमेजिन करो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो ये जो पीली वाली एक्सिस है वो व्हाइट वाली एक्सिस के पैरेलल है। पॉइंट नंबर 1, व्हाइट वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैलिड है, लगेगा। तो पीले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, तो mr²। ये जोड़ा तो 7/5 mr²।
इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको मैं क्विक प्रैक्टिस के लिए ये भी बोलूँगा कि बच्चों तुमने ये जो रॉड का ये दोनों लिखा है, मान लो तुम्हें सिर्फ ये वाला याद है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता कर सकते हो। ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है, ऐसा तुम्हें याद है। ये एक्सिस इससे L/2 दूरी पे है, L/2 दूरी पे, L रॉड का लेंथ है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? ये ICM प्लस MD², m L/2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो mL²/3 आ जाएगा, जो मैंने तुम्हें याद करने को कहा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे एक पेपर की शीट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका तीसरा डायमेंशन मोटाई नेग्लिजिबल है, फ्लैट, एक कागज की शीट, एक डिस्क, एक रिंग, स्फीयर के लिए ये थ्योरम नहीं लगेगा, सिलेंडर के लिए ये थ्योरम नहीं लगेगा, स्क्वायर प्लेट उसके लिए लगेगा, रेक्टेंगुलर प्लेट लगेगा, डिस्क लगेगा, लेकिन स्फीयर सिलेंडर के लिए नहीं लगेगा, क्यूब नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बच्चा पार्टी देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को जरा ठीक से समझ लीजिए। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई बहुत ही पतली चीज है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ऐसे बना दिया मैंने, पतली सी कोई चीज है, इसके प्लेन में, इस ऑब्जेक्ट की प्लेन में कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, एक को x नाम दे दो, एक को y नाम दे दो। ये कागज की शीट है, इसके प्लेन में कोई भी 2 लाइन खींच दो परपेंडिकुलर, एक इधर एक इधर, एक को x एक को y नाम दे दो। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है। तो z एक्सिस कहाँ होगा? अगर x और y यहाँ है तो ऐसे कागज के परपेंडिकुलर, जो z एक्सिस होगा, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix प्लस Iy के इक्वल होता है। ये थ्योरम सिर्फ फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के रिगार्ड में ये बात की जा रही है। जो Iz है वो जो फ्लैट ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, और Ix और Iy बॉडी की प्लेन में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy होता है। इसका यूज कैसे करना है ये एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखते चलिए। अगर मैं डिस्क की बात करूं, हम क्या जानते हैं? m मास और r रेडियस के डिस्क के लिए ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ठीक। अब किसी ने अगर पूछा तुमसे कि डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि डिस्क में 2 परपेंडिकुलर डायमीटर बना देते हैं, इसको x इसको y को पाते हैं। भाई डिस्क तो डिस्क है, सिमेट्रिकल है, इसमें इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट क्या फर्क हो सकता है? हम सिंपल कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि भाई Ix और Iy तो इक्वल ही होंगे, अलग क्या होगा? कोई भी डायमीटर बना दे, एक ऐसा बना दे तो भी उतना ही होगा, डायमीटर तो डायमीटर है, सिमेट्री। आप देखिए Ix प्लस Iy इस Iz के बराबर होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो हमें पता है हाफ mr²। तो मैं यहां लिख सकता हूं Ix प्लस Ix, क्योंकि Ix प्लस Iy इज सेम एज Ix, तो Ix प्लस Ix इज इक्वल टू हाफ mr²। तो Ix की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 mr²। एक डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² होता है। अब कोई पूछ दे कि इस टेंजेंट के अबाउट बताइए, तो ये वाली जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट तुम्हें पता है 1/4 mr², और इसके पैरेलल ये दूसरी एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी एक्सिस के अबाउट I पता है, उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ लिखना है I डैश, तो कैसे लिखेंगे? ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि 1/4 mr² है, इसमें जोड़ देंगे mr², ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी r है, तो ये बन जाएगा 5/4 mr²। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल जल्दी से देखिए। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी रेक्टेंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितनी होती है? ma²/12, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सिस के अबाउट कितनी होती है, तो क्या बताओगे? कैसे बताओगे?
बहुत आसान है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, इन दोनों के बीच की दूरी a/2 है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये प्लस md², मतलब ma/2 होल स्क्वायर के बराबर होगी। ये सिंप्लीफाई करके देखो ma²/3। ठीक, बहरहाल मैं तुमसे ये पूछता हूं, एक स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड लेंथ a है और मास m है। बच्चों बताओ कि इसके सेंटर से पास होने वाली इस पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? सेंटर से पास होने वाली पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? वीडियो रोक दो, खुद से ट्राई करो, तभी से बहुत वीडियो देख रहे हो, खुद से जरा ये क्वेश्चन बनाओ। बहुत सिंपल, जैसा अभी हमने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए पढ़ा, हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 है। हमें पता है कि स्क्वायर है इसलिए ये भी ma²/12 है। क्या फर्क है दोनों? इसको x और इसको y एक्सिस मान सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। इसलिए जो z एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? दिस प्लस दिस, ये जोड़ोगे तो क्या आएगा? ma²/6। तो स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? ma²/6। अब बच्चों एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे पास एक क्यूब हो जिसका मास m और साइड लेंथ a हो, अगर एक क्यूब हो जिसका मास m और साइड लेंथ a हो और क्यूब के सेंटर से पास हो रही है ये वाली एक्सिस, क्यूब के सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? बता दो, सोचो, बताओ। वीडियो पॉज कर दो, खुद से करो। अगर मैं इस क्यूब को ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, तो ये बहुत सारे स्क्वायर प्लेट बन गए, पीले नीले हरे, और हर स्क्वायर प्लेट के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ma²/6। तो अब आप शायद आंसर देना समझ गए कि कैसे देना है। ये जो पहला स्क्वायर प्लेट है पीला वाला, इसका मास अगर m1 है, इसकी इतनी हो गई। ब्लू वाले का मास अगर m2 है तो इसकी इतनी हो गई। हरे वाले का मास अगर m3 है तो इसकी इतनी हो गई। इन सबको जोड़ते जाना है। a²/6 कॉमन है, ma²/6, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस स्क्वायर प्लेट की। चलो आखिरी क्वेश्चन के साथ तो मैं छोड़ जाता हूं, खुद से बताना। इस स्क्वायर प्लेट नहीं, क्यूब, आई एम वेरी सॉरी, क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस क्यूब के इस साइड के अबाउट, इस क्यूब के इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद से लिखो। ये तुम्हारा खुद का असाइनमेंट है। लिख दिया तो सब समझ गए। आई होप कि मैंने आपको मोर और लेस सभी जरूरी फॉर्मूले एक तरह से याद करा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई चीज के साथ। गुड बाय।